Everybody, in today's video we are going to discuss that how to make mains notes for UPSC CSE, right? Many of people don't even know is there any difference in the prelims on the mains notes, right? Then particular video we are going to discuss that is there any difference in the prelims and mains notes, or is they are the same, right? And then secondly, if they are not same, then how to make notes for specifically for the mains, right? And I'm going to show my own notes for the MSP topic, which I have already made a few days ago, right? So let's go. Let's first discuss that is there any difference? Of course there is a difference, guys. There's a big difference when you're studying for the pre and for the mains, right? For the prelims and the mains, I've already wrote them all. The first is the whenever we are studying for the prelims, we mostly focuses on the facts, right? But whereas whenever we are discussing for the mains or writing for the mains, studying for the mains, we also see facts, there are issues and solution, etc etc etc. ठीक है? When prelims के लिए हम क्यों पढ़ते हैं? We have to solve MCQs and write in the exam. तो हमें facts पे ही ज़्यादा ध्यान देना होता है. But when you are studying for the mains, you should have the analytical and detailed knowledge about that particular topic. Whenever we're studying for the prelims, we focus on the static part and the current affairs and the facts, right? But when we're studying for the mains, we understand the concept in depth. Then when we see, then what we see is what are the causes of this particular thing, right? If there is a poverty, why? Is there any cause? Right? Cause. Then what is the impact? Then the solution. Then we should have our own analytical analysis or analytical thinking about that topic, so we can write any questions that one has asked in the mains. For the prelims, we should have even if we have the surface level understanding, we will be able to understand, we will be able to solve the MCQ. But without depth, you can't write mains answer, right? इसमें हमें सिर्फ फैक्ट्स को रिकॉल करना होता है. हेयर हमें मल्टी डायमेंशनल व्यू पता होना चाहिए, हमें डीप अंडरस्टैंडिंग होती है. दीज आर द सेम थिंग्स विच यू नो. अब यहाँ पे हमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करना होता जब हम प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं. हमें एक फैक्ट 4 टॉपिक्स में से उस फैक्ट को रिकॉल करके एक को टिक करना होता है, दैट्स इट. बट जब आप मेंस के लिए करेंगे तो आपको वैल्यू एडिशन होना चाहिए टू स्कोर मोर. देन आपके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए, कमिटीज़ होनी चाहिए, कुछ केसेस होने चाहिए, राइट? प्रीलिम्स के नोट्स काफ़ी शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट एंड क्रिस्प. बट वेयरएज अगर हम मेंस के नोट्स देखें तो दैट आर लॉन्गर स्ट्रक्चरल नोट्स. ठीक है? सो येस, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द प्रीलिम्स एंड द मेंस नोट्स. ठीक है? जो आप लोग मेंस के लिए पढ़ते हो ना, वो आपको प्रीलिम्स में ज़रूर हेल्प करेगा. अगर कोई एप्लीकेशन क्वेश्चन आया है, राइट, एप्लीकेशन क्वेश्चन में आपको मेंस की पढ़ी हुई चीज़ें हमेशा काम करेगी प्रीलिम्स में. अब देखो, जब अगर क्वेश्चंस, अगर चीज़ें डिफरेंट हैं, अगर प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स आर डिफरेंट, तो हाउ कैन वी मेक मेंस नोट्स? ठीक है? तो देखो, हम ना एक चीज़ लेके चलते हैं, एक टॉपिक लेके चलते हैं. मैं जैसे एक MSP का टॉपिक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. आई होप आप सबको पता होगा, इकोनॉमिक्स में GS3 में ये टॉपिक है. ठीक है? GS3 में आपका ये टॉपिक है MSP का. तो अगर आप लोग MSP के नोट्स बना रहे हैं मेंस के लिए, हम मेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेंस के लिए नोट्स बना रहे हैं, तो हम लोग MSP के नोट्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए जो हम एग्ज़ाम में लिखेंगे अगर MSP पे क्वेश्चन आ जाता है, राइट? हमें इसके प्रोसेस पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कैलकुलेट कैसे करते हैं इसे, कौन इसको अनाउंस करता है. ठीक है? ये सब हो गई प्रीलिम्स की चीज़ें. अब यहाँ पे हमें डेफिनेशन का ध्यान रखना है. व्हाट इज़ द प्रोसेस, ये हमारे बैकग्राउंड में होना चाहिए, माइंड में. देन व्हाट इज़ द इश्यूज़ विद MSP, है ना? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, अगर कोई इश्यूज़ है तो इसका सॉल्यूशन क्या है. देन वी शुड हैव सम ग्राफ. ये अब वैल्यू एडिशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे. वी शुड हैव सम ग्राफ टू
गेट एक्स्ट्रा मार्क्स इन द एग्ज़ाम. देन अगर कोई कमेटी है, जैसे शांता कुमार कमेटी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आई एम श्योर. उन्होंने क्या बोला एमएसपी के बारे में, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस, है ना. तो हर टॉपिक का ना हमें जो ये पार्ट होता है, ये तो हमें हर टॉपिक का बनाना होता है ऐसे स्ट्रक्चरल वे में. ठीक है, सॉरी, ऐसे स्ट्रक्चरल वे में हमें ये पता होना चाहिए. तो ऐसे बनाते हैं मतलब मीन्स के नोट्स. अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं, देखो होता क्या है ना, हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में नोट्स बनते कैसे हैं. देयर इज़ अ बिग डिफरेंस व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर द प्रीलिम्स एंड व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर द मेंस. हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है. ठीक है, जब हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो हम ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो फैक्ट्स पे फोकस करते हैं. बट जब हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके एनालिटिकल थिंकिंग को समझ सकें, हम उसके इश्यूज़ को समझ सकें, हम उसके सॉल्यूशन को समझ सकें, हम उसके कॉजेज़ को समझ सकें. राइट, दिस इज़ द डिफरेंस जो आपको आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए. जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने एमएसपी पढ़ा, आपने डेफिनेशन पढ़ी, ओके, आपने ग्राफ पढ़ा, ठीक है, उसके बाद आपको खुद से सोचो कि क्या इश्यूज़ हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है. राइट, खुद से इश्यूज सोचो, खुद से सॉल्यूशन, देन आप लोग पढ़ो. दिस इज़ व्हाट इज़ द स्टडी फॉर द मेंस. ठीक है, अब मैं आप लोगों को अपने एमएसपी के नोट्स दिखा दूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए. ऑल द एमएसपी इज़ अ लिटल पॉलिटिकली पॉलिटिकल टॉपिक हो जाता है ज़्यादा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं हम लोग. बट दिस इज़ माई नोट्स. एक्चुअली ये ना ब्लैक एंड वाइट में है, मैंने पीडीएफ काफ़ी पहले बनाई थी. देखो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नोट्स हैं, सी एमएसपी. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, जो मैं श्योर हूँ कि अगर एग्ज़ाम आ जाता है आई विल बी यूजिंग दिस डेफिनेशन. ये एक प्रोसेस है इसका छोटा सा, जो सबको पता होता है एज अ बैकग्राउंड में. दिस इज़ द ग्राफ, दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग का ग्राफ. ओके, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग का है, रियल ग्राफ आपको बाद में. दिस इज़ हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड. हम इंश्योर कैसे कर सकते हैं कि एमएसपी हो रहा या नहीं हो रहा, तो वेज टू इंश्योर एमएसपी. देन अनाउंस कैसे होता है एमएसपी, दिस इज़ मोर लाइक अ प्रीलिम्स टॉपिक. सी, देन मैंने लिखा है कि इश्यूज़ क्या है एमएसपी के साथ, है ना, कि एमएसपी जो है वो कहीं किसी स्टेट्स में ही कंसर्नड है. मोस्टली वीट राइस इन्हीं पे मिलती है, इसके वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाती, एसेट्रा एसेट्रा. ठीक है, एक WTO का जो डी मिनिमस लिमिट है. देन आई हैव रिटन द इश्यूज़. अगर जैसे आपको पता है अभी फार्मर्स ने कुछ टाइम पहले प्रोटेस्ट चल रहा था कि लेजिस्लेशन के लिए, राइट. तो मैंने इसमें लिख रखा है कि अगर जस्ट इमेजिन क्वेश्चन आ जाता है तो ये इन फेवर में लिखेंगे हम, कि इन फेवर में ये सारे पॉइंट 5, अगेंस्ट में ये 5 पॉइंट. ठीक है, एंड हियर आर द सॉल्यूशन एंड दिस इज द ग्राफ. दिस इज हाउ हम लोग जैसे, हाँ ये देखिए MS स्वामीनाथन कमेटी है. तो यार ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए. ठीक है, आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ों का पता लगा हो, थोड़ी क्लैरिटी आई हो. मैंने ज़्यादा डेप्थ में कोशिश नहीं करी है बनाने की, बिकॉज देन ना वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो कि मेंस के नोट्स एक्चुअली में बनते ही हैं कैसे हैं. इन सम डे आई विल ट्राई कि आप लोगों को ना प्रीलिम्स के नोट्स में साथ के साथ दिखाऊं कि यहाँ पे प्रीलिम्स के नोट्स हैं, यहाँ पे मेंस के नोट्स हैं, क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है. लेकिन आप लोगों को मेरे नोट्स देख के समझ आए होंगे कि यस हमें काफ़ी डेप्थ में बनाने पड़ते हैं. वही अगर ये प्रीलिम्स के नोट्स होते ना तो ये 2 पेज में हो जाता. ठीक है, सो यस, दिस इज़ फॉर ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.